हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲਟ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲਟ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ sanitation and climate change. Next है Interpol and World Customs Organization द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया क्राइम्स ਦੇ रिलेटेड, इन्वायरमेंटल क्राइम्स ਦੇ रिलेटेड, नेम्ड ऑपरेशन थंडर ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ऑपरेशन शुरू किया गया इन्वायरमेंट क्राइम्स ਦੇ अगेंस्ट इंटरपोल द्वारा और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कल भी डिस्कस किया ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। इंटरपोल हैडकुआटर लियोन फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰੂਸਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੋਪਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। CEO ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RBI ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਕੈਂਪੇਨ, ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਮਾਊਥ ਸ਼ਟ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਮਾਊਥ ਸ਼ਟ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੀਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ appointed as brand ambassador of Equitas Small Finance Bank brand ambassador ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। Equitas Small Finance Bank ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਈਵਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੁਟਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਚੇਨਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਟਖਟ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਔਸਕਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਊਮੈਥ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਡਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ। ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿਵਿਆ ਕਾਰੂਨੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਇਲੋ ਕੋਲਹਿਓ ਦ ਆਰਚਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਆਰਚਰ। ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
चित्रा बनर्जी, दिव्या कारुनी, द लास्ट क्वीन और पालो कोल्हो, द आर्चर। HDFC ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵਨੀਤ ਮੁਨੋਤ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ। रेणु देवी एंड तरकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और तरकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं बिहार के। रेणु देवी का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट वूमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं बिहार के। अच्छा, पंजाब की अगर आप गल करिए, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, सिंपल चीफ मिनिस्टर होंगे ने। तो पंजाब के फर्स्ट वूमेन चीफ मिनिस्टर किहड़े सी? पंजाब के पहले और इकलौते वूमेन चीफ मिनिस्टर ने वो किहड़े सी? नेक्स्ट है फॉर्मर बांग्लादेशी अंडर-19 क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद सोजीब, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। राजस्थान के मिनिस्टर सूजनगढ़ तो मिनिस्टर सीगे MLA सीगे भंवरलाल मेघवाल, इन्हां दी भी रिसेंटली डेथ हो गई। इंडियन क्रिकेटर सुदीप त्यागी की गल करते हैं। इंडियन क्रिकेटर सुदीप त्यागी, इन्हों द्वारा रिटायरमेंट लीती गई। क्रिकेटर ने सुदीप त्यागी रिटायरमेंट अनाउंस की गई है क्रिकेट। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP। इन्हों द्वारा लीलावती अवार्ड 2020 इनोग्रेट किया गया ऑन द थीम ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट इन 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज के वूमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे लीलावती अवार्ड इनोग्रेट किए गए हैं रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। आरियाना सैबालेंका बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल चल रही है। इन्हों द्वारा लिंज ओपन टाइटल जीता गया। लिंज ओपन टाइटल टैनिस का एक टूरनामेंट है जिसनों लिंज ऑस्ट्रिया ऑर्गेनाइज किया गया। ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना चल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर के नाल एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर कौन ने? जेवियर बैटल। लग्जमबर्ग सिटी कैपिटल है, करेंसी इत्थे यूरो चलती है। शेख सलमान बिन हमल अल खलीफा अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरेन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। बहरेन कैपिटल मनामा है, करेंसी दीनार चलती। मैनुअल मैरीनो प्रेजिडेंट ने पेरू के प्रेजिडेंट से इन्हों द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया। नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। बेसिकली अगर आप गल करते हैं एक वीक के 7 दिनों की अगर आप गल करते हैं तो पिछले 7 दिनों के तीसरे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। पेरू के तीसरे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, उन्होंने नाम अज आप डिस्कस करांगे। कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल चलती। नाम इन्हें फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, इस करके इंपोर्टेंट नहीं बनने। सिंपल कैपिटल और करेंसी याद रखनी है पेरू की। UAE की गल करते हैं, इन्होंने 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू किया फॉर प्रोफैशनल्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू किया UAE द्वारा। नेक्स्ट है चाइना विल लॉन्च चेंग-ई 5 मिशन चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। चेंग-ई 5 मिशन चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर स्टडी ड्रिलिंग ऑन मून एंड ब्रिक सम रॉक्स बैक टू अर्थ बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा चेंग-ई 5 मिशन। चेंग-ई 5 मिशन है जोड़ा की करेगा मून के उत्ते ड्रिलिंग करेगा, मून के उत्ते ड्रिलिंग करने का काम करेगा और रॉक्स नू या फिर कह सकते हैं कि मिट्टी नू अर्थ से लेके आएगा। उस तो बाद इत्थे उसके टेस्ट किए जाएंगे। चाइना ने इस तरीके के मिशन नू पहले भी लॉन्च किया सी, अनसक्सैसफुल रहा सी, इस बार उसनू दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। नैक्सट डिस्कस करिए अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज फॉर एसैट मोनेटाइजेशन। एसैट मोनेटाइजेशन के लिए एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। नैक्सट है जय भवानी वूमेन कोऑपरेटिव टैक्सटाइल मिल। जय भवानी वूमेन कोऑपरेटिव टैक्सटाइल मिल फर्स्ट ऐसी सोलर पावर टैक्सटाइल मिल बनेगी एशिया की, जो कि महाराष्ट्र दे विच है। महाराष्ट्र की एक मिल एशिया की पहली सोलर पावर टैक्सटाइल मिल बनेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गल करते हैं, इनोग्रेट किया इन्होंने द्वारा बेंगलुरु टैक समिट। बेंगलुरु टैक समिट, बेंगलुरु टैक समिट नूं कित्थे इनोग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसकी थीम है नैक्सट इज नाउ। बेंगलुरु कर्नाटका दे विच इनोग्रेट किया गया वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के राही। थीम इंपोर्टेंट बनेगी नैक्सट इज नाउ। नैक्सट है डिजिटल म्यूजियम ओपन किया गया गवालियर MP दे विच। एक डिजिटल म्यूजियम गवालियर MP दे विच कर्नाटका द्वारा, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया लिंगियत कम्युनिटी के लिए कि लिंगियत कम्युनिटी के लिए की किया जाएगा कोऑपरेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट शुरू की जाएगी। इस तो इलावा इंडियन रेलवेज का फर्स्ट एवर फूड ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के लॉन्च किया गया। इंडियन रेलवेज का पहला फूड ट्रक महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन के इनोग्रेट किया गया। राजस्थान द्वारा चाइल्ड राइट्स वीक ऑब्जर्व किया गया 14 तो लैके 20 नवंबर तक। ऑल्सो इन्हों द्वारा ही वत्सल्य और सामर्थ स्कीम्स, दो स्कीम्स याद रखने ने राजस्थान दियाँ, वत्सल्य और सामर्थ, वत्सल्य और सामर्थ स्कीम्स नूं लॉन्च किया गया राजस्थान द्वारा। इस तो इलावा एक स्किल डेवलपमेंट और काउंसलिंग सेंटर भी लॉन्च किया गया जोधपुर दे विच। जोधपुर दे विच एक स्किल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर भी ओपन किया गया। नैक्सट आप डिस्कस कर रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे स्टैटिक पोर्शन के विच। चंडीगढ़ की गल करते हैं सिटी लेक और सुखना लेक, सिटी लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ पामेदा, गोमारदा, सीता नदी और आचना कमर, पामेदा, गोमारदा, सीता नदी और आचना कमर। दिल्ली की गल करते हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिल्ली दे विच असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोवा की गल करते हैं बोंदला, नेत्रावली, कोटीगांव और माधेई। बोंदला काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंदला, नेत्रावली, कोटीगांव और माधेई। गुजरात की गल करते हैं तो गागा, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंबूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कच्छ रन ऑफ कच्छ है जोड़ा रन ऑफ कच्छ, इसनू कच्छ डेजर्ट के नाम तो भी जानिया जाता है। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है? गुजरात दे विच। गागा, जंबूगोड़ा, भारदा और कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात दे विच। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? यह ऑब्जर्व किया गया वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, सॉरी वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे 19 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली कि 19 नवंबर नूं वूमेन अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली अगर आप गल करते हैं कि डाटा की, तो मास्टर कार्ड द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया सी कि 7.4% डाटा थोड़ा कह सकते कि 2019 के लास्ट दे विच रिलीज़ किया गया सी कि 7.4% बिजनेस ने जिहड़े इंडिया दे विच ओह वूमेनस द्वारा ऑकूपाइड ने, वूमेनस ऑनर ने, सिर्फ 7.4%। ठीक है, तो वूमेनस नूं प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप दे विच अगर कह सकते हैं कि प्रमोट किया जा सके, बिजनेसिस नूं प्रमोट करने के लिए वूमेनस द्वारा चलाए जाने वाले इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इसे दिन एक होर दिन ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड फिलोसफी डे। वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व किया गया 19 नवंबर नूं। इस दिन हर साल नवंबर के तीसरे थर्सडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरे वीरवार नूं कह सकते हैं कि नवंबर के तीसरे वीरवार नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 19 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया, 19 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, ये दो दिन याद रखने ने। आपां चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। अच्छा, 19 नवंबर नूं ही कल आप डिस्कस किया सी, या कह सकते हैं हुणे रिवीजन दे विच डिस्कस किया सी वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे थीम इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखना सस्टेनेबल सैनिटेशन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज।
SSCC, Sustainable Sanitation and Climate Change. Next है which organization has launched Team Halo to counter misinformation around COVID-19 pandemic. COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਹਾਲੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਟੀਮ ਹਾਲੋ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੀਮ ਹਾਲੋ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 22 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। FAO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਨ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਕੋਇਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਡੋਂਗਿਊ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which country has given hosting rights for FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ FIFA ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੰਡਰ 17 ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 2020 ਵਾਲਾ ਈਵੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 2022 ਦਾ FIFA Under-17 ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ FIFA ਦਾ ਹੀ Under-20 ਹੈ, ਜੋ Under-20 ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ Under-20 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 2022 ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਈਵੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ 2 ਈਵੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 21 ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 22 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ FIFA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ FIFA ਜ਼ੁਰੀਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FIFA ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, FIFA ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2026 ਦਾ
फीफा वर्ल्ड कप है जिहड़ा ये कैनेडा USA और मैक्सीको होस्ट करनगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कैनेडा USA और मैक्सीको होस्ट करनगे जिहड़े मेन वर्ल्ड कप ने ये दो मेन वर्ल्ड कप ठीक है जी। उस तो बाद अंडर 20 मैन का और अंडर 20 वूमेन का मैन वर्ल्ड कप 2021 दे विच इंडोनेशिया होस्ट करेगा और 2020 का सीगा जिहड़ा हुण 2022 दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोस्टा रिका और पनामा द्वारा ठीक है जी। कोस्टा रिका और पनामा द्वारा ये लिस्ट पहले भी डिस्कस की हुई है अपने एक ए इवेंट चेंज होया है और एक ए वाला चेंज होया ठीक है। 2021 का हुण अंडर 17 मैन और अंडर 17 वूमेन मैन वाला 2021 दे विच ही होएगा पेरू होस्ट करेगा और 2022 दे विच इंडिया होस्ट करेगा वूमेनस वाला ठीक है। हुण सिमिलर तरीके नाल अगर आपां गल करदे हां तो ये जिहड़े वर्ल्ड कप ने मेन वर्ल्ड कप मैन दे वर्ल्ड कप ने सिमिलर जिहड़ा मेन वर्ल्ड कप है वूमेनस दे लई 2023 दे विच ऑर्गेनाइज करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ठीक है जी। इवेंट्स याद रखने ने इंपोर्टेंट बननगे। नैक्सट चलते हैं BCCI के बारे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इसने अनाउंस किया किट स्पॉन्सर टीम इंडिया की किट्स जी किट्स होंदियां ने जिहड़े क्लॉथ्स वगैरह उन्होंने द्वारा पाए जाते हैं प्लस उन्होंने किट्स होंदियां ने बैटिंग हो गई या फिर प्रॉपर जी किट होंदी है तो वह किट के लिए स्पॉन्सर चूज किए गए हैं। किसनों स्पॉन्सर चूज किया गया MPL स्पोर्ट्स मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स की अपॉइंट किया गया टाइटल स्पॉन्सर अपॉइंट किया गया टीम इंडिया के लिए BCCI द्वारा टाइटल स्पॉन्सर अपॉइंट किया गया। BCCI की गल करते हैं हैडकुआटर मुंबई के विच है। BCCI की गल करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट ने 39 नंबर के सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए BCCI के ठीक है जी। ये याद रखने इस तो इलावा INX ग्रुप की गल करते हैं इन्होंने ओलंपिक के लिए स्पॉन्सर अपॉइंट किए गए हैं। जो ओलंपिक इस टाइम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के उसके स्पॉन्सर अपॉइंट किए गए INX ग्रुप ठीक है जी। ड्रीम 11 स्पॉन्सर अपॉइंट किया गया IPL का IPL के स्पॉन्सर कौन से जो 13th एडिशन से जिसनों मुंबई इंडियंस द्वारा जितया गया ठीक है ड्रीम 11। नैक्सट है इंडियाज आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सुपर कंप्यूटर इंपोर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि कुछ दिन पहले ही आप इसका नाम डिस्कस किया बेसिकली अगर आप लास्ट गल करिए आई थिंक लास्ट मंथ के आप न्यूज़ डिस्कस की थी परम सिद्धि के बारे कि यह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। इसनों लिस्ट जारी की गई है टॉप 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स की वर्ल्ड के टॉप 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम के विचों इंडिया का जोड़ा सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि ये किनवें नंबर पर रहा है 63rd नंबर पर रहा ठीक है जी। ये याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा कि इंडिया का जोड़ा परम सिद्धि है यह किनवें नंबर पर रहा 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स के विचों 63वें नंबर पर 63rd नंबर पर। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं 63rd नंबर पर ही इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रही सी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के इंडिया 63rd नंबर पर रहा टॉप किया गया न्यूजीलैंड द्वारा। 44th नंबर पर इंडिया कंपीटिटिव बिजनेस रैंकिंग के रहा कंपीटिटिव बिजनेस नहीं सॉरी डिजिटल कंपीटिटिव रैंकिंग के इंडिया 44th नंबर पर रहा और टॉप किया गया USA द्वारा। इंडिया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिसेंटली जारी किया गया सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 76th नंबर पर रहा इंडिया और टॉप किया गया डेनमार्क द्वारा। डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन है करेंसी क्रोन चलती। 84th नंबर पर इंडिया हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के रहा हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 84th नंबर पर रहा टॉप किया गया जापान द्वारा। अच्छा पासपोर्ट के रिलेटेड एक होर इंडेक्स जारी किया गया पासपोर्ट रिलेटेड इंडेक्स आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स इस इंडिया 58th नंबर पर रहा 58th नंबर पर रहा इंडिया और टॉप किया गया न्यूजीलैंड द्वारा। ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया रहा 144th नंबर पर और टॉप किया गया फिनलैंड द्वारा। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी है करेंसी यूरो चलती है ठीक है जी। याद रखना सारा कुछ।
नैक्सट चलते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च कासा कैंपेन फॉर फाइनैंशियल ईयर 2020-21। कासा की गल करते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बेसिकली बैंकिंग सैक्टर के इन्हों के अकाउंट्स इंक्रीज करने के लिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कैंपेन लॉन्च किया गया है। किन्ना द्वारा? करनाटका बैंक द्वारा। करनाटका बैंक द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। अच्छा, करनाटका बैंक की गल करते हैं, हैडकुआटर मैंगलोर दे विच है। करनाटका दे विच अगर आप गल करते हैं, दो सिटीज़ ने, बैंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है। तो करनाटका के मैंगलोर दे विच हैडकुआटर है। 1924 दे विच बनाया गया सी। MS बालेश्वर इस दे हैड ने। MS बालेश्वर इस दे हैड ने। ठीक है जी, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इस करके आप नाम डिस्कस कर रहे हैं। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने। HDFC रिलेटेड एक न्यूज़ है, लक्ष्मी विलास बैंक के रिलेटेड। ये तो लक्ष्मी विलास बैंक के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली याद रखने कि इसनों रिस्ट्रिक्शन के अंदर लगाया गया। इस बैंक की जी कंडीशन है, जिस तरीके आप येस बैंक बारे डिस्कस किया किसी टाइम के कि जो येस बैंक है, ये काफ़ी ज़्यादा लोन इसके उत्ते हो गया सी और उसके उत्ते रिस्ट्रिक्शन लगाई गई सी और कहा गया सी कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है जो उसका रिड्यूस हो गया सी। सिमिलर तरीके नाल लक्ष्मी विलास बैंक जो कि चेन्नई के विच है और 1926 के विच बनाया गया सी, इस दे उत्ते रिस्ट्रिक्शनस लगाई गई ने विड्रॉल के रिलेटेड। अपने लिए सिंपली इंपॉर्टेंट बनेगा हैडकुआटर और फाउंडेशन ईयर। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि HDFC बैंक की सबसिडरीज ने HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस। HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस जिसनों अपोलो मुनीच हेल्थ इंश्योरेंस के नाम तो भी जानिया जाता सी, इसनों मर्ज किया गया HDFC एग्रो जर्नल इंश्योरेंस के नाल। हेल्थ इंश्योरेंस नूं जर्नल इंश्योरेंस के नाल मर्ज किया गया। ठीक है, इसकी अप्रूवल किन्ना द्वारा दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा IRDAI द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका इंपॉर्टेंट बनेगी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा इसनों 1999 दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, इसके जोड़े हैडकुआटर है हैदराबाद है। हैडकुआटर पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादातर हैडकुआटर्स होंगे ने जोड़े दिल्ली या मुंबई के होंगे ने, या फिर जो साउथ इंडियन बैंक्स ने उन्होंने इधर चले जाते हैं चेन्नई तमिलनाडु रिलेटेड। तो अपना IRDAI है जोड़ा एक नैशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हैडकुआटर कितने है? हैदराबाद है और इसके हैड भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी सुभाष चंद्र कुंतिया याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी फॉर फिनिशिंग 2020 एज द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर फॉर द 6th टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छेवीं बार वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर रहे ने, छेवीं बार इन्हों ATP टूर नंबर 1 टाइटल दिता गया। ATP यानी कि बेसिकली टूर नंबर 1 ट्रॉफी है जी टेनिस से रिलेटेड है। टूर नंबर 1 ट्रॉफी छेवीं बार किन्ना ने दी है? ये दी है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया तो बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर ने। बाकी ऑप्शंस भी सारे टेनिस प्लेयर ने। डिस्कस कर लेने 2 न्यूज़ ने टेनिस रिलेटेड। सब तो पहले कि जोड़े सर्बिया के टेनिस प्लेयर ने नोवाक जोकोविक, इन्होंने ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीती है क्योंकि 2020 के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रहे ने रैंकिंग के। ठीक है, ये ऐसे दूसरे प्लेयर बने ने जिन्हों ने इस ट्रॉफी को 6 बार जीते आफ्टर पीट सैंपरस तो बाद ये दूसरे ऐसे प्लेयर ने जिन्होंने इस ट्रॉफी को 6 बार जीते है। ठीक है जी, दूसरी गल करते हैं डोमिनिक थीम की। डोमिनिक थीम द्वारा जो कि ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, आप हमने डिस्कस की सी, करेंसी यूरो चलती है। तो जो डोमिनिक थीम ने इन्होंने ATP फाइनल जीते रफल नडाल हरा के, स्पैनिश प्लेयर रफल नडाल हरा के ATP फाइनल्स टेनिस का टूरनामेंट है इसनों जित लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ was not selected by World Economic Forum to pioneer a roadmap for smart cities। क्वेश्चन ध्यान नाल सुनना है कि नॉट की होया कि जी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सब तो पहले कोलोगनी स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है, 1971 के बनाई गई सी। इसकी 50th मीटिंग
ਦੇਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੀ 51st ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਸਰਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 50th ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ G20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, G20 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ। 36 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। 4 ਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ 4 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ? हैदराबाद है, इंदौर है, बेंगलोर है और फरीदाबाद है। यानी कि अपना ऑप्शन होएगा गुवाहाटी। आंसर यानी कि गुवाहाटी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, हुण जिहड़ी ये 4 सिटीज़ ने हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर और फरीदाबाद, ये याद रखनियां ने। इस तो इलावा अगर आप सिमिलर तरीके नाल गल करिए, इंडिया दे विच भी एक कैंपेन है स्मार्ट सिटीज़ कैंपेन, जिस दे अंडर इंडिया दी सिटीज़ नूं स्मार्ट सिटीज़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जिहड़ी ओह स्मार्ट सिटीज़ ने वो कितनियां अनाउंस कीतियां गईयां सी? 100 स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस कीतियां गईयां सी। तुहानूं याद होएगा आपां बजट के बारे डिस्कस किया सी जनवरी फैबररी दे विच, बजट के बारे डिस्कस किया सी। तो बजट के बारे जो आप डिस्कस किया सी उदों अनाउंस किया गया सी 100 स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस कीतियां गईयां सी, जिस दे विच पहली स्मार्ट सिटी सी भुवनेश्वर। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इत्थों कि पहली स्मार्ट सिटी किहड़ी सी? भुवनेश्वर। और लास्ट किहड़ी है? शिलोंग। लास्ट मेघालय की शिलोंग है और पहली उड़ीसा की भुवनेश्वर। नेक्स्ट है विच कंट्री साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस डील रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट। ठीक है, न्यूज़ आई थिंक तो सारे ने पढ़ ली होगी, पर यह चीज़ इंपोर्टेंट बनेगी। RAA क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है कि जापान द्वारा RAA एग्रीमेंट केड़ी कंट्री के नाल साइन किया गया? तो आंसर होएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। आंसर की होएगा? ऑस्ट्रेलिया। कि साउथ चाइना सी दे विच, साउथ चाइना सी दे विच चाइना नूं काउंटर करन दे लई, चाइना की जिहड़ी प्रेजेंस है इंक्रीज़ कर रहा है चाइना साउथ चाइना सी दे विच, उसनूं रोकण दे लई, काउंटर करन दे लई जापान ने किहड़ी कंट्री दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया दे नाल। एग्रीमेंट का नाम की होएगा? RAA, रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट। ठीक है जी, किहड़ी कंट्री दे नाल साइन किया गया? ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दोनों कंट्रीज़ दे अगर आप हैड की गल करते हैं तो जापान के जोशिदाई सुगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी, और ऑस्ट्रेलिया की गल करते हैं तो स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन याद रखने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की, तो बाकी ऑप्शनस दे विच वियतनाम के बारे याद रखना है। कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग चलती है। रिसेंटली एशियान समिट सी, जिहड़ा एशियान समिट सी, उस दे विच 15 कंट्री एशियन समिट नहीं कहांगे, RCEP समिट सी जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया गया 4th एडिशन, उस दे विच 15 कंट्रीज़ द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया, जिस दे विच चाइना, जापान और भी काफ़ी कंट्रीज़ शामिल सीगियां। ठीक है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया सीगी, याद रखनी। इंडिया ने RCEP दे विचों कह सकते एग्जिट किया सी। पहले RCEP दे विच 16 कंट्रीज़ होंदियां सी, हुण 15 कंट्रीज़ ने। नैक्सट है मियाया सांधू। मियाई सांधू फर्स्ट वूमेन प्रेजिडेंट बने ने किहड़ी कंट्री दे? मियाई सांधू फर्स्ट वूमेन प्रेजिडेंट बने ने मोलदोवा। मोलदोवा एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप दे विच एक छोटी जी कंट्री है मोलदोवा। मोलदोवा कंट्री दे फर्स्ट वूमेन प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए ने मियाई सांधू। मोलदोवा कैपिटल है चिस्माऊ। चिस्माऊ कैपिटल है, करेंसी लीव चलती है। चिस्माऊ कैपिटल है, करेंसी इत्थे लीव चलती है। ठीक है जी, बाकी कंट्रीज़ के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले केनिया, वर्ल्ड दा ओनली वाइट जिराफ केनिया दे विच है। कल एक लड़की का इस लड़की ने न्यूज़ नूं डिस्कस भी किया सी सैशन दे विच। वर्ल्ड ओनली नॉन वाइट जिराफ कि वर्ल्ड का इकलौता वाइट जिराफ है जिहड़ा केनिया दे विच है। ठीक है, उसके उत्ते GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। हालांकि न्यूज़ इस तरीके नाल एग्जाम दे विच आएगा, एग्जाम दे विच आपां नूं पुछया जाएगा कि वर्ल्ड का ओनली वाइट जिराफ किहड़ी कंट्री दे विच पाया जाता है? केनिया दे विच है। ठीक है जी, केनिया कैपिटल और करेंसी पूछी जा सकती है। कैपिटल नायरोबी है, करेंसी शिलिंग चलती है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ पेरू पेरू की गल करते हैं तो पेरू के हुणे आपां डिस्कस किया कि पेरू के प्रेजिडेंट एक हफ्ते के तीसरी बार बनाए जा रहे हैं। तो तीसरे बार कौन अपॉइंट किए गए हैं? फ्रांसिस्को सागास्ती। फ्रांसिस्को सागास्ती नाम इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। कैपिटल और करेंसी याद रखनी है। कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल चलती। यह इंपोर्टेंट बनेगी न्यूज़ कि श्रीलंका है जिहड़ा श्रीलंकन एयरफोर्स ने फर्स्ट वूमेन पायलट्स इशू अपने कमीशन किए हैं। ठीक है, जिस तरीके नाल इंडिया दे विच वूमेन पायलट्स नूं प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर रफाल की गल करते हैं तो रफाल इंडिया ने फ्रांस तो लए और अनाउंस किया गया कि पहले वूमेन जिहड़े रफाल उड़ाणगे वो कौन होणगे? शिवांगी होणगे। ठीक है, नाम इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना है। तो सिमिलर तरीके नाल हुण श्रीलंका ने भी की किया वूमेन पायलट्स नूं कमीशन करना शुरू किया। तो इन्होंने पहले 2 पायलट्स जिहड़े कमीशन किए ने उन्हें ADPL गुणार्थ ने और RT वीरावर्धना। ठीक है जी। नैक्सट है बोलीविया। बोलीविया के विच नवा वायरस पाया जा रहा है, चपारे वायरस। जिस तरीके आपने कोविड-19 के बारे डिस्कस किया कि कोविड-19 कित्थों ओरीजन होया सी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोविड-19 का ओरीजन किहड़ी कंट्री दे विचों सी या किहड़ी सिटी दे विचों सी। तो आप डिस्कस करते हुंदे हां चाइना और वुहान का नाम, वुहान सिटी ऑफ चाइना। सिमिलर तरीके नाल चपारे वायरस है। बेसिकली चपारे जिहड़ी बोलीविया दे विच एक प्लेस भी है, सिटी भी है चपारे, और एक रिवर भी है बोलीविया दे विच। तो उत्थों इस वायरस का ओरीजिनेट कहा जाता है कि यह 2004 दे विच पहली बार बोलीविया दे विच पाया गया सी और हुण दोबारा इसके केसिस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं बोलीविया दे विच। कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनेगी। कैपिटल सुक्रे है, करंसी बोलीवियानो चलती है। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ सी अपनी स्किप हो गई सी, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। ककापो पैरेट की स्पीसीज़ है। पैरेट का नाम है ककापो पैरेट नूं बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया 2020 के लिए न्यूजीलैंड द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया ककापो पैरेट नूं। अच्छा, न्यूजीलैंड बारे ही याद रखना है। न्यूजीलैंड के बारे याद रखना सी। इत्थे दे नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सी। नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है। एंड्रिया कुछ समथिंग नाम सीगा, एंड्रेना, चलो मेरे जैकिंदा एंडरसन नूं नवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया सी न्यूजीलैंड का। इस तो इलावा प्रियंका राधाकृष्णन का नाम याद रखना है। पहले इंडियन ओरीजन मिनिस्टर बनाए गए सी न्यूजीलैंड दे विच। नैक्सट है विच स्टेट गौरमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड काओ कैबिनेट। केड़ी स्टेट गौरमेंट ने काओ कैबिनेट या गऊ कैबिनेट बनाने की शुरू की है काओ प्रोटैक्शन के लिए, टू कंजर्व एंड प्रमोट काओ प्रोटैक्शन। किसना द्वारा शुरू किया गया? इसनूं शुरू किया गया है MP द्वारा। MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनाउंस किया गया है। बेसिकली अगर आप गल करते हैं इस न्यूज़ नूं डिटेल भी डिस्कस करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इत्थों पूछे जा सकते हैं। इस तो इलावा बाकी स्टेट के रिलेटेड भी आप न्यूज़ डिस्कस करांगे। सब तो पहले MP द्वारा काओ कैबिनेट या गऊ कैबिनेट अनाउंस की गई है, बनाई जाएगी। इस दे लई पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। कित्थे की जाएगी? कामधेनु गऊ अभयारण्य दे विच। कामधेनु गऊ अभयारण्य जो कि अगर मालवा दे विच है। यह जिहड़ा नाम है प्लेस इंपोर्टेंट बनेगी। क्यों इंपोर्टेंट बनेगी? क्योंकि यह इंडिया की पहली काओ सेंचुरी है। इंडिया की पहली काओ सेंचुरी कित्थे बनाई गई सी? MP दे विच 2017 दे विच बनाई गई सी। ठीक है जी। और इसनूं कामधेनु गऊ अभयारण्य इंडिया की पहली जिहड़ी काओ सेंचुरी है अगर मालवा दे विच, MP दे अगर मालवा दे विच है, उत्थे इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी काओ कैबिनेट नूं बनाउण दे लई। नैक्सट है करनाटका रिलेटेड भी ये न्यूज़ भी कल एक लड़का सीगा उन्हां द्वारा दसी गई सी कि 2015 मीटर आइडल भगवान हनुमान की एक मूर्ति बनाई जा रही है 215 मीटर की एक मूर्ति बनाई जा रही है। कित्थे? परमपुर कृष्णा किंदा टैंपल, हंपी कर्नाटका दे विच। परमपुर किशकिंदा टैंपल है। क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म दे विच काफ़ी बार पूछा जाता है किशकिंदा टैंपल कित्थे है? किशकिंदा टैंपल कर्नाटका दे विच है, क्योंकि किशकिंदा टैंपल है जिहड़ा एक प्लेस है कर्नाटका दे विच, बलारी प्लेस है। यह यूनैस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट दे विच है। यूनैस्को की जिहड़ी वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 38 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਲਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਬਲਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਹੰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਰੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰਮਪੁਰ ਕਿਸ਼ਕਿੰਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਪਰਮਪੁਰ ਕਿਸ਼ਕਿੰਦਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ 215 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 184 ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਆ ਕਮਨ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨਿਆ ਕਲਮ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਵੀਕੁਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਰਾਵੀਕੁਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਈ ਕਲਮ ਸਮਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਰਾਵੀਕੁਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ। ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ UT ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ। ਗੋਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਓਬੀਚਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਗੋਆ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਗੋਆ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਸਿਨਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਾਈ ਸੌਂਦਰਾਜਨ ਨੇ, ਤਮਿਲਾਈ ਸੌਂਦਰਾਜਨ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਮਿਲਾਈ ਸੌਂਦਰਾਜਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀਜ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨ ਨਾਓ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਨਾਓ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਓ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸਟ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀਜ਼, ਵੈਸਟ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਲਮੀਕੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।